Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 8 which is radioactive decay law. So बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोड़ा कि थोड़े एग्जाम के अंदर बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पूछा जा सकता है. सो बहुत ही केयरफुली जोड़ा तुसी इनू प्रिपेयर करना है. सो चलो बच्चे सब तो पहले आप डिस्कस करांगे डेफिनेशन तो कि डेफिनेशन की है रेडियो एक्टिव दी. सो रजे एक रिक्वेस्ट है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है लाइक रेडियो एक्टिव ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲॉज ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਐਲਫਾ ਡਿਕੇ, ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ, ਗਾਮਾ ਡਿਕੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਲਫਾ ਡਿਕੇ ਕੀ ਆ, ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਕੀ ਆ, ਗਾਮਾ ਡਿਕੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ, ਮਤਲਬ 5 to 10% ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੀਆਂ ਜਾਣ. ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ. ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੈਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ. ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਡਿਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਅਰਸ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੌਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਡਿਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੁੱਟਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਹੈਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਟੂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲਾਈਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਈ ਦਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ. ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਵੀਅਰ ਟੂ ਲਾਈਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ. ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ. ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੈਡ ਪਿਆ ਆ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਸਮੌਲ ਲਾਈਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਉਸ ਪੂਰੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇਮ ਔਰ ਸਨ ਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਮ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲਸਰੀ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਸਕਣ. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲॉज ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ. ਲॉज ਮਤਲਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਨੰਬਰ 1, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ. ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਐਂਡ ਵਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਏਜ ਆ, ਬਟ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਵੈਨ ਅ particular atom is in a given radioactive sample will undergoes disintegrate. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਨ ਅ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਟਮ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ
कोई लैड लै सकते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव सबसटेंस लै सकते हैं। कहते आइदर एन एल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। सो ये एल्फा पार्टिकल भी अमिट हो सकती है और ये बीटा पार्टिकल्स भी अमिट हो सकती है। सो फर्स्ट बच्चे क्लीयर हो गया, फर्स्ट लॉ की आ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है और इनू असी इकोदम जिहड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सैकेंड की आ जिहड़ा रेडियो एक्टिव एलीमेंट आ वो जो डिसइंटीग्रेट होंदा है वो चो या तो एल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलणगे या फिर बीटा पार्टिकल्स। नैक्सट आ जाओ, द एमिशन ऑफ एल्फा पार्टिकल बाय रेडियो एक्टिव एलीमेंट रिजल्ट्स इन अ डॉटर एटम। सो बच्चे तुसी कैमिस्ट्री के अंदर आ प्रोसीजर जी आ कैमिकल रिएक्शनस तुहानूं दिख रही तुसी कैमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कीतियां होणगियां इदां दियां। डॉटर की हुंदा है, डॉटर एटम की हुंदा, पेरेंट एटम की हुंदा, तुसी कैमिस्ट्री के बहुत डीपली पढ़िया होएगा। सो अपनी फिजिक्स के जस्ट हल्का फुल्का ही आ द एमिशन ऑफ एल्फा पार्टिकल। जो एल्फा पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव एलीमेंट के विचों निकलता है जो डॉटर एलीमेंट होएगा हुज एटॉमिक नंबर इज 2 टाइम्स लैस। हुण बच्चे डॉटर एलीमेंट की आ कौन आ? पेरेंट एटम जो मेन एटम आ जिहड़ा तो न्यू एटम बनया उन्होंने असीं डॉटर एटम बोल दिंदे आ। की बोल दिंदे आ? डॉटर एटम। उन्होंने क्या जो भी तुहाडा ओरिजिनल एटम होएगा उहदे नालों जिहड़ा एटॉमिक नंबर आ वो 2 टाइम्स लैस हो जाएगा। एटॉमिक नंबर मतलब Z। एटॉमिक नंबर का मतलब की हुंदा? Z। सो बच्चे एटॉमिक नंबर A नहीं हुंदा, बहुत सारे बच्चे A ते लगा के आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर मीनस Z। Z की हो जाता है 2 घट जाता है, डिक्रीज हो जाता। एंड मास नंबर नूं काहदे नाल लिखिया जाता? A दे नाल। मास नंबर इज 4 टाइम्स लैस दैन द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम अगर मास A आ तो डॉटर का की होएगा 4 टाइम्स घट जाएगा, सो A-4। ਇਹਦਾ मतलब इतों इस पूरे कह लो मैथमैटिकल पोर्शन तो या इस एक्सप्रैशन तो सानू ये क्लीयर हो जाएगा कि जो एल्फा निकलिया कि बीटा निकलिया। किद्दां पता लगेगा? सानू ओरिजिनल पता कि आ सी, असी चैक किया जदों तो Z नालों जिहड़ा एटॉमिक नंबर 2 घट सी ते मास नंबर 4 घट सी। डेफिनेटली उस किहड़ी एमिशन हुई है? एल्फा पार्टिकल्स। एल्फा पार्टिकल जिहड़े आ अमिट हो गए तो आ वाला जिहड़ा एलीमेंट आ वो बन गया। नैक्सट आ जाओ, द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय द रेडियो एक्टिव एलीमेंट रिजल्ट इन अ डॉटर एलीमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 1 टाइम्स मोर। हुण मान लो जिहड़ा एटॉमिक नंबर आ वो एक इनक्रीज कर गया तो Z+1 हो गया, बट मास नंबर इज अ सेम। बट मास नंबर देखो पहला भी A सी हुण भी A आ। अगर इदां दा एलीमेंट सानू मिलता है इहदा मतलब इहदे विचों किहड़ियां डिके होई आ? बीटा डिके, मतलब बीटा पार्टिकल इहदे विचों बाहर निकलिया। क्लीयर हो गया। सो बच्चे थर्ड लॉ की सी? अगर पेरेंट एटम दे नालों 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर घट जाए, मास नंबर 4 टाइम्स घट जाए तो एल्फा पार्टिकल अमिट हुंदा है। अगर तुहाडा एटॉमिक नंबर जिहड़ा है एक इनक्रीज हो जाए और मास नंबर A जिहड़ा है सेम रहे तो उत्थों बीटा पार्टिकल डिके हुंदा। बच्चे आ 4 लॉज तुसीं लिखने ही लिखने आ। ये 4 लॉज लिखण तो बाद साडा मेन मैथमैटिकल पोर्शन जिहड़ा स्टार्ट हो जाएगा। जिथे 5th पॉइंट लिखिया है 5th पॉइंट देना 5th दे दो, अदरवाइज तुसीं नैक्सट पैरे तो स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 4 ही लॉज है जी। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी टाइम। अगर किसी भी टाइम जिहड़ा आ तुहाडा डिसइंटीग्रेशन हुंदा आ वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस टाइम कितना होया? मान लो मैं तुहानूं कोई रेडियोएक्टिव एलीमेंट पकड़ाता, एक बच्चे नूं आ देता, दूसरे नूं आ देता, तीसरे नूं आ देता, मतलब तुहाडे कोल कोई ना कोई रेडियोएक्टिव एलीमेंट पिया आ। उस टाइम जिहड़ा रेडियोएक्टिव एलीमेंट आ वो किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा? नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड। 1 सेकेंड दे विच किन्ने नंबर ऑफ एटम जिहड़े डिसइंटीग्रेट हो रहे आ, टुट रहे आ। सो किद्दां लिखांगे? dN/dt। dN/dt की आ? नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे आ? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस टाइम तुहाडे कोल नंबर ऑफ एटम किन्ने प्रेजेंट आ उहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्लीयर हो गया बच्चे? जो तुसी मैथमैटिकल पोर्शन थ्योरेटिकल लिख रहे हैं उन्होंने ही असी मैथमैटिकल दे विच कन्वर्ट करता। हुण इन द नैक्सट स्टैप dN/dt बच्चे SH लिखिया रहन दो, डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाता, इसकी जगह ते आ गया -λ। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाता
ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਨਸ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा तो नेगेटिव साइन असी लगा दिता। बच्चे क्लियर हो गया? dn ओवर dt इज इक्वल टू माइनस लैमडा n किस तरीके ना आया। हुण नैक्सट देख लो, वेयर लैमडा इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लैमडा नूं असीं की कहता? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ, विच इज कॉल्ड डिके कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जिन्हों असीं डिके कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। सो अगर तुसीं इह तिन्नां विचों एक भी पॉइंट, एक भी कॉन्स्टेंट मैंशन करे आ पेपर के अंदर तो तुहानूं फुल मार्क्स मिलणगे। जरूरी नहीं है कि तुसीं तिन दे तिन लिखणे आ, तुसीं तिन्नां दे विचों कोई भी एक जिहड़ा है जिहड़ा तुहानूं लर्न हुंदा वो लिख सकदे आ। नेगेटिव साइन की शो कर रहा, एन डिक्रीज कर रहा एज डी एन ओवर डी टी विल इनक्रीज। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ असी बच्चे इंटीग्रेशन करन लगे हैं। साडे को आंसर की आया सी डी एन ओवर एन, सॉरी डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस लैमडा एन। आ बच्चे आंसर आया सी तुहाडा। असी की किया, आ वाले एन नू नीचे लै जाओ, साडे को आ गया डी एन ओवर एन इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा डी टी। आ बच्चे क्लीयर हो गया? आ वाली इक्वेशन किद्दां आई आ? ठीक है, इस तरीके ना आई आ। साडे को बाय डेफिनेशन असी इस तरीके ना लिखिया सी, असी एन वाली टर्म एक पासे लै गए, माइनस लैमडा डी टी एक तरफ लै गए। हुण असी की करना? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। नेगेटिव साइन या लैमडा जो कॉन्स्टेंट आ बच्चे नूं इंटीग्रेशन तो बाहर पहला ही निकालता। क्लीयर हो गया जी? हुण बच्चे मैथ्स के अंदर ਜਿਹੜੇ मैथ्स वाले स्टूडेंट होणगे वो पढ़ चुके होणगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ log ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਕ dn ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੇਮ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਆ n, ਸੋ dn ਓਵਰ n ਆ ਗਿਆ, मतलब सेम वेरीएबल का असीं इंटीग्रेशन करन लगे तो काहदे विच कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग दे विच। सो नैचुरल लॉग च होएगा। सो आ पूरी टर्म कच कन्वर्ट हो जाएगी लॉग दे पैर विच ई एन, एंटी लॉग, ठीक है, एन। सो लॉग दे पैर विच ई एन विच कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा लिख दो। हुण बच्चे सानू पता जो इंटीग्रेशन और डेरीवेटिव नूं की करता है? खा जाता है। खा जाता मतलब उन्होंने कैंसल आउट कर देगा। सो मतलब इंटीग्रेशन ने डेरीवेटिव नूं कैंसल आउट कर दिता, पिछे कौन बच गया? कल्ला टी। सो आ स्टैप सब नूं क्लीयर हो गया। लॉग ई एन जिहड़ा आ वो किहदे इक्वल आ जाएगा? लैमडा टी दे। सो तुसीं इत्थे बच्चे लैमडा टी भी नैक्सट स्टैप दे विच लिख सकते हैं, लैमडा टी। क्लीयर हो गई राजी आ चीज़? लॉग जिहड़ा dn ओवर n आ बच्चे तुसीं इस तरीके नाल लिखना आ। एक्चुअली इत्थे मैं कंप्यूटर ते टाइप किया होया, इस करके इस तरीके नाल लिखिया होया है ना, dn ओवर n इदां लिखिया होया, पर तुसीं पेपर 'च इस तरीके नाल लिख के आना आ, dn ओवर n इदां प्रॉपर लिख के आना। ठीक है जी। इनू इंटीग्रेट किया तो काहदे विच कन्वर्ट हो गया? लॉग दे विच। बच्चे ध्यान नाल देख लो, इंटीग्रेशन dn ओवर n कच कन्वर्ट हो गया लॉग ई एन दे विच, और माइनस लैमडा बाहर सीगा डी टी आ कद च कन्वर्ट हो गया माइनस लैमडा टी दे विच। क्लीयर हो गया जी? सो इत्थे तुसी डायरैक्ट लिख दिता माइनस लैमडा टी। क्लीयर हो गया रजे? जदों भी असी किसी भी टर्म नू कॉन्स्टेंट वाली टर्म नू इंटीग्रेट करांगे, आ वाली टर्म नू इंटीग्रेट करांगे तो साडा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नाल आ जाएगा विच इज़ प्लस के। किहड़ा कॉन्स्टेंट आ जाएगा? प्लस के। इस करके जो बच्चे इनू इंटीग्रेट किया तो आ वाली पूरी टर्म की जगह ते साडे को की आ गया? आ वाली पूरी दी टर्म ते आ गया माइनस लैमडा टी प्लस के। बच्चे प्लस के वाला कॉन्सैप्ट सबनों क्लीयर हो गया? जदों भी बच्चे लॉग वाली इंटीग्रेशन हुंदी आ, याद रखना जो सिंपल असी इंटीग्रेशन करते हो उस केस के विच इदां कदे नहीं हुंदा कि कोई कॉन्स्टेंट टर्म असी नाल जोड़ दित्ती। तुसीं इदां दा केस पहला कदे मे भी ना देखिया होवे। सो देख के कन्फ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। जदों भी याद रखना लॉग वाली इंटीग्रेशन होएगी जदों भी, ठीक है, जदों ओदी असी इंटीग्रेशन नू सॉल्व करांगे लाइक माइनस लैमडा, हुण इंटीग्रेशन ने डेरीवेटिव नू खा लिया तो टी आ गया, टी प्लस के क्यों आया? क्योंकि ये लॉग वाली इंटीग्रेशन आ। जदों भी लॉग वाली इंटीग्रेशन होएगी सिंपल टर्म नू जदों असी इंटीग्रेट करते हैं कोई ना कोई कॉन्स्टेंट के जरूर आएगा नाल।
वेयर के इज कॉन्सटेंट। सो आ गई बच्चे थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तक सबनों क्लीयर है? कुछ भी नहीं क्लीयर होएगा तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच दे देना, थोड़े हर एक डाउट जिहड़ा क्लीयर किए जाएंगे। हुण आ जाओ, असीं स्टार्ट किया कि तुहाडे कोल इत्थे कोई एलीमेंट पिया सी, उस टाइम उहदा टाइम कितना सी 0। हुण असीं 5 दिन बाद, 100 दिन बाद या हज़ारां साल बाद उस एलीमेंट नूं दोबारा देखिया। इहदा मतलब 10 दिन भी हो सकते हैं, टाइम जिहड़ा टी आ वो कितना भी हो सकता, 10 डेज़ हो सकता है, 365 डेज़ हो सकता, या फिर 5 साल भी हो सकता है। सो असी गल करन लगे हां स्टार्टिंग दी, गल कीती स्टार्टिंग दी, तो टाइम कितना सी 0। तो जिहड़ा तुहाडा मटीरियल आ, इहदा मतलब हले उहदे विच बहुत घट जिहड़ा आ डिके होई आ। सो इहदा मतलब तुहाडे नंबर ऑफ एटम्स किन्ने होणगे, n0। n0 मीनस ओरिजिनल, n0 मतलब ओरिजिनल या फिर इनिशियली नंबर ऑफ एलीमेंट्स। क्लीयर हो गया? चलो जी, इनू पुट करते हैं आपां बच्चे फर्स्ट इक्वेशन दे विच। इनू पुट किया इत्थे आ वाली इक्वेशन नू। सो साडे को की आ गया, log e n की जगह ते की आ जाएगा n0। ठीक है जी, असी पुट कर दिता n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा, टी की जगह ते की पुट किया 0, के की जगह ते के। 0 नू जो लैमडा नाल मल्टीप्लाई किया गया 0 प्लस के। सो log e n0 का आंसर कितना आ गया के। सो log e n0 का आंसर कितना आ गया बच्चे के। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। हुण सैकेंड इक्वेशन जिहड़ी आ बच्चे इक्वेशन नंबर 1 च पुट करांगे। हुण ध्यान नाल पुट करके देखो, log e n इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा टी। हुण के कॉन्सटेंट, असी बच्चे कॉन्सटेंट के निकालण लई आ वाली कंडीशन लित्ती सी। ठीक है, के कॉन्सटेंट की वैल्यू फाइंड आउट करन दे लई असी स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया सी। स्टार्टिंग टाइम टी सी, नंबर ऑफ एलीमेंट्स n0 सी, उस टाइम के दी वैल्यू कितनी सी, के दी वैल्यू उस टाइम कितनी सी, प्लस log e n0। क्लीयर हो गया? बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन रही है, आ स्टैप क्यों किया तो फिर आ स्टैप क्यों किया। एक्चुअली आ स्टैप क्यों किया, क्योंकि असी के दी वैल्यू फाइंड आउट करनी सी, इस करके असी वैल्यूज पुट कीतियां टी इज इक्वल्स टू 0 तो n इज इक्वल्स टू n0। क्लीयर हो गया? सो बच्चे पुट करन ते थोड़ी आ वाली इक्वेशन जड़ी आ जाएगी। सो आप नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी बच्चे इक्वेशन आ गई, जो इक्वेशन नंबर 2 नू इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, थोड़ी आ इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, हुण लॉग वाली टर्म्स एक पासे ले जाओ। सो की आ जाएगा log e n, आ वाली टर्म बच्चे दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस log e n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा टी। हुण राजे मैथ्स दे विच एक फॉर्मूला आ log a माइनस log b। मे बी मैथ्स वाले बच्चों को अच्छी तरीके नाल आंदा होएगा। log a ओवर b। बच्चे मैथ्स का फॉर्मूला जिदा तुसी करदे आ, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 हुंदा आ। सो जिदा ट्रिग्नोमैट्रिक दे तुसी इक्वेशनस कीतियां होईयां आ, सिमिलरली बच्चे लॉग दे फॉर्मूलेज हुंदे आ। log a माइनस log b के इक्वल हुंदा आ log a ओवर b दे। सो असीं इहनूं कन्वर्ट करन लगे हां log e, a दी जगह ते की लिखांगे n। सो इत्थे लिख दिता n डिवाइडेड बाय b दी जगह ते की लिखांगे n0। सो इहदी जगह ते पुट कर दिता n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा टी। सो आ गई थोड़ी नेक्स्ट इक्वेशन, log e n डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल्स टू लैमडा माइनस लैमडा टी। हुण की करना है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हुण एंटी लॉग की वर्ड है, एंटी लॉग जिहड़ा है लॉग नूं कैंसल आउट कर दिंदा। एंटी लॉग ने की करना, लॉग नूं कैंसल आउट। जो बच्चे एंटी लॉग लवांगे, लॉग ने कैंसल आउट हो गया मतलब खत्म हो गया। सो इहदी जगह ते की बच गया n डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल टू, अगर कोई भी कॉन्सटेंट टर्म का असीं एंटी लॉग लैने तो ई दी पावर च कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज माइनस ई माइनस लैमडा टी। सो इहदी पावर दे विच आ जाएगा ई दी पावर माइनस लैमडा टी। सो साडे को फाइनली आंसर की बच गया आफ्टर एंटी लॉग n ओवर n0 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस लैमडा टी। नाउ आ वाला n0 जिहड़ा दूसरी तरफ ले जाओ, सो n इज इक्वल्स टू n0 e raised to power minus lambda t. So this is the final answer. So this is also known as exponential decay constant. So इनू असी की बोल दिन्ने आ exponential decay constant. So पंजाब बोर्ड दे विच बच्चे ग्राफ काफ़ी घट पूछा जाता है,
बट ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQs ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਗ੍ਰਾਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x एक्सिस एंड y एक्सिस लिती, x एक्सिस से ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ टाइम t और y एक्सिस से ਲਵਾਂਗੇ नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियस, सो दैट इज n। सो जो ग्राफ होएगा स्टार्टिंग पॉइंट कितना आ, मतलब कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स वो मैक्सीमम आ, टाइम इज t इक्वल्स टू 0। सो टाइम 0 आ बच्चे, इस टाइम इत्थे कितना आ n नॉट, मतलब कि मैक्सीमम नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ। जिद्दां जिद्दां टाइम बीतदा जाएगा, टाइम अगे जाता जाएगा, उदा उदा जिहड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स की होंदे जाणगे डिक्रीज, डिक्रीज मतलब नीचे नूं आएगा ग्राफ। सो इस तरीके नाल थोड़ा जिहड़ा ग्राफ आ बन जाएगा, ठीक है जी। सो जिथे जाके बच्चे n ओवर n नॉट मैक्सीमम होएगा तो टाइम मैक्सीमम होएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज n इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैमडा टी। सो अदरवाइज तो बच्चे पंजाब बोर्ड के ग्राफ के उत्ते काफ़ी घट फोकस किया जाता, बट ट्राई करो कि तुसी ग्राफ ऑलवेज बना के ही आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के ग्राफ नहीं होंदा तो मैं ऑलवेज मार्क्स घट कर दियाँ। सो सिमिलरली हो सकता कि बाकी टीचर्स भी थोड़ा मार्क्स इस ग्राफ के जोड़े मार्क्स घट करन, सो ग्राफ नूं जरूर प्लॉट करके आओ, ठीक है जी। सो अगर लेक्चर अच्छे तरीके ना क्लीयरली समझ लग गया हो तो वीडियो नूं लाइक कर दो, मैक्सीमम शेयर कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।